Our mother ran out of the room and woke up her father. Devi ran to the telephone and called her friend Riya. Devi said, Riya, I have got magic eyes. Riya couldn't understand anything. She said, Magic eyes? What do you mean? Devi said, Please come to my house immediately. Let's walk to school together and I will show you. As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. फिर उसकी मम्मा है वो ये सब देखकर डर गई, उसे कुछ समझ भी नहीं आया, तो वो जल्दी से गई और उसके पापा को जगाया। देवी तोड़कर टेलीफोन के पास गई और उसने अपनी फ्रेंड रिया को फ़ोन लगाया और उसने कहा, रिया मेरे पास मैजिक आइस है। रिया भी कुछ समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा कि मैजिक आइस तुम क्या कहना चाहती हो? फिर देवी ने क्या कहा कि तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, फिर हम साथ में स्कूल पे जाएंगे चलते हुए, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या है मैजिक आइस। और दोनों साथ में स्कूल पे जा रही थी और देवी ने उसे बताया रिया को कि वो अपनी मैजिक आइस से क्या कर सकती है। They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. Riya saw Atul sitting in front of her, making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. Riya nodded Devi, who just looked at the rocket and said, Please come to Atul. फिर क्या हुआ? दोनों बहुत एक्साइटेड थी और उतने में वो स्कूल पहुंच गई। टीचर वो क्लास में आ गए थे और उसने आज का टॉपिक है बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। रिया है उसने देखा कि अतुल है वो पेपर रॉकेट बना रहा है और वो क्या कर रहा है, फर्स्ट रो पे जो बॉय बैठा है उसके ऊपर वो फेंकना चाहता है। फिर रिया ने ये देखा तो उसने देवी को दिखाया और फिर उसे समझाया। तो फिर देवी ने क्या कहा, प्लीज कम टू अतुल, और वो रॉकेट है वो किसकी तरफ चला गया, अतुल की तरफ। टू एवरीवन सरप्राइज द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड darted towards Atul. Atul was in great shock. He tried to duck, but the rocket hit him on the forehead. The teacher turned back and said, Atul, how many times I have warned you not to play mischief in class. This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. As Atul said, Oh no, Riya and Devi giggled hiding behind their notebooks. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो अतुल ने रॉकेट है वो बॉय की तरफ फेंका तो सबके लिए सरप्राइज था। फिर रॉकेट है वो यूटर्न लेता है वो बॉय के पास पहुंचने से पहले ही, और वो किस तरफ आता है, अतुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अतुल भी शौक में था, उसने कोशिश की कि वो उसे रोक सके, और क्या हुआ, रॉकेट है उसके सिर पे यानी कि फोरहेड पे आके लगता है। टीचर ही वो पीछे घूमते हैं तो टीचर ने कहा कि अतुल, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि क्लास में कोई मिसचीफ नहीं करना है, पर इस बार मैं तुम्हें पनिश करूंगी और तुम्हें पेज रिपोर्ट का लिखना है आज के इंसिडेंट के बारे में, और उसका प्रेजेंटेशन कल असेंबली में बताना है। फिर अतुल ने कहा, अरे नहीं, रिया और देवी है वो बुक के पीछे मुस्कुरा रही थी, वो अपने चेहरे के आगे बुक रखती और फिर दोनों मुस्कुराती एक दूसरे को देख। ड्यूरिंग लंच टाइम दे सेट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड and opened their lunch box. Suddenly Devi heard some strange sounds near her. She looked around and found a couple of baby birds. They were bulbuls which had fallen from their nest. Devi gently lifted them with her eyes and said, Go back to your nest. The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. On the way home, Devi saw the strange man again. He
came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for good purpose. So I am happy with you. And I want to give you one more boon. What would you like to have?" Devi said, "Whatever you want to give, please give it to my friend Ria." The man was happy to hear this and he said, "Ria, you are lucky to have a friend like Devi. I give you the power to go anywhere you want. You close your eyes and think of a place and you will be there. You can hold Devi's hand and take her also there with you." The man disappeared. Both Devi and Riya were very happy. The first thing they did was to hold each other's hand, closed their eyes and thought of. फिर क्या हुआ? लंच टाइम के दौरान देवी और रिया है वो स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठी थी और वो अपना लंच बॉक्स ओपन करके बैठी थी। तभी देवी ने कुछ सुना। आसपास से कोई अजीब साउंड आ रहा था, तो उसने आसपास देखा तो देखा कि दो बर्ड से वो गिरे हुए थे और वो बुलबुल थे जो अपने नेस्ट में से गिर गए थे। फिर देवी ने अपनी आइज की मदद से तार से उसे उठाया और कहा कि गो बैक टू योर नेस्ट, वापस अपने घोंसले में चले जाओ। फिर बर्ड से वो अपने नेस्ट में चले गए। फिर उसकी मदर है उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो उसे हग करती थी। फिर रास्ते में देवी ने वापस वही आदमी को देखा था। वो आदमी उसी की तरफ आता है और उसे कहा कि देवी, मैंने जो तुम्हें मैजिक आइस दी है उसने तुम्हें सही यूज़ किया, तुमने उसकी वजह से कोई बुरा यूज़ नहीं किया है, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जो भी चाहती हो मैं और एक चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ। देवी है वो क्या कहती है कि आपको जो भी देना है वो मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड रिया को दे दो। ये बात सुनकर वो आदमी है बहुत खुश हो जाता है और वो रिया को कहता है कि तुम्हारे पास देवी जैसी फ्रेंड है इसलिए तुम बहुत लकी हो। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम जब चाहो और जहाँ पे चाहो वहाँ पे जा सकती हो। क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और वो प्लेस के बारे में सोचना है, तो तुम वहाँ पे पहुँच जाओ और तुम अपने साथ अपनी फ्रेंड देवी को भी ले जा सकती हो। तो सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहाँ पे जाने का सोचा होगा, तो चलो देखते हैं। Where do you think Devi and Riya want to go? Now both of them had magic powers. How do you think they would have used them? वो दोनों कहाँ पे गई होगी और उसने अपना पावर कैसे यूज किया होगा? I think Devi and Riya want to go to the land of fairies. I think they would have used them to help people, birds and animals. Riya would have used her power to help herself and Devi reached the place where someone was in trouble, and then Devi would have used her magic eyes to help people. फिर क्या हुआ? देवी और रिया है वो फेरी के लैंड में जाना चाहती होगी और वो दोनों क्या करेगी? अपनी पावर से पीपल, बर्ड्स और एनिमल की मदद करेगी। रिया है वो देखेगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और अपने आप की मदद कर सकती है। देवी वहाँ पे पहुँचेगी और वो लोगों की मदद करेगी अपनी मैजिक आइज की मदद से।